تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں جیسا کہ معمول ہے کہ تجارت سے متعلق، کاروبار سے متعلق، صنعت و حرفت سے متعلق اور مالی معاملات کی جو لین دین ہوتی ہے، اس کے حوالے سے آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں، جن معاملات پہ آپ شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں، تو یہ فورم ہمارا اسی مقصد کے لیے ہے۔ اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ العالی، انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب سے شرعی رہنمائی لے کر آپ کی طرف بڑھائیں گے۔ پہلے شامل کرتے ہیں سلسلے میں درود پاک کی فضیلت۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، ان اللہ وکل بقبری ملکن، بے شک اللہ عز و جل نے میری قبر مبارک پر ایک فرشتے کو مقرر فرما دیا ہے، اعطاہ اسماء الخلائق، کہ جس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ تمام مخلوقات کی آواز کو سننے کی طاقت رکھتا ہے۔ قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلا تاخیر بڑھیں گے آپ کی کالز کی طرف اور شامل کریں گے سلسلے میں پہلی کال، اور پھر چلیں گے انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب کی طرف۔ جی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ اگر مسجد کی پہلی انتظامیہ نے کوئی بلب وغیرہ یا پنکھے وغیرہ لگوائے ہیں، اب وہ پنکھے وغیرہ یا بلب وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں، تو نئی انتظامیہ ہوئی ہے، وہ اس کو نہیں لگوائے تھے اور پرانے بیچ سکتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خراب ہو گئے ہیں وہ۔ جی دیکھیے خراب اگر ہو گئے ہیں وہ جی تو لا محالہ انہیں چینج کیا جائے گا۔ مسجد کو روشن رکھنا اور ضروری جو بلب اور لائٹ ہے اس کا اہتمام کرنا، یہ تو ویسے بھی ضروری ہے۔ تو اگر تو وہ خراب ہو گئے تو تبدیل کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے خراب نہیں ہوئے تو پھر جدا کرنا صورت ہے، ٹھیک ہے کیونکہ بلا وجہ جو ہے وہ اس طرح کی تبدیلی کی حاجت تو نہیں ہوگی۔ جو چیز قابل استعمال ہوتی ہے اسے استعمال میں لایا جائے گا۔ ٹھیک اب ہے مسجد کے جو املاک ہیں، یہ تو ویسے بھی جو ہے وہ وقف کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے خراب ہو گئی ہے تو اس میں تبدیل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شوق ہوتا ہے، جیسے گھروں میں تبدیلیاں لوگ کرتے رہتے ہیں، رنگ کرواتے رہتے ہیں، بلب چینج کر دیے، لائٹ چینج کر دی، پنکھے چینج کر دیے، اور دیگر جو اس طرح کے آئٹم ہوتے ہیں وہ کیونکہ اس میں جدت آتی رہتی ہے، نئے ماڈلز آتے رہتے ہیں، نئے ڈیزائن آتے رہتے ہیں۔ اب کسی نے یہ سوچ کے نئے لگا لیے کہ بھئی یہ تو پرانے ہو گئے، کافی قدیم ہو گئے۔ بالخصوص لائٹوں کا اگر معاملہ دیکھیں ہم تو یہ جیسے جیسے پرانی ہوتی جاتی ہیں ویسے ویسے اس کی کارکردگی میں بہرحال کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ تو اب وہ نئی چیز دیکھتے ہیں، پیسے بھی ہیں تو چینج کر لیں، تو اگر ایسی صورت تو دیکھیں اگر لائٹ کم ہو گئی ہے تب بھی اس کا استعمال تو باقی ہے۔ جی جو نفس مسئلہ ہے پہلے اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے، مسئلہ ہے کیا؟ جی مسئلہ اس مقام پر یہ ہے کہ جو چیز کسی نے مسجد کو دی، دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے یا تو مسجد کا جو فنڈ ہوتا ہے چندہ، ٹھیک ہے، اس سے وہ خریدی گئی عمومی ہوں گی، چندہ جو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اگر اس سے خریدی گئی تب بھی وہ مسجد کی پراپرٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے مسجد کو دی، کسی خاص فرد نے دیے، خاص فرد نے مسجد کو دی، ٹھیک ہے تو یہ بھی مسجد کی ملکیت ہو گئی۔ ٹھیک ہے ان دونوں میں بس ایک فرق رہتا ہے، ٹھیک ہے اگر کوئی چیز ناقابل استعمال ہو جائے جی تو وہ پھر دینے والے کی ملکیت پہ لوٹ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے
जबकि मुअय्यन शख्स है, मुअय्यन शख्स हो, पता हो, ठीक, तो फिर उसकी इजाज़त से जो करना है वो करेंगे। ठीक है, जबकि नाकाबिल इस्तेमाल हो गई हो। ठीक है, दूसरी सूरत ये है कि मस्जिद के चंदे की थी, ठीक है, तो यहाँ तो तब्दीली की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, जब तक नाकाबिल इस्तेमाल हो गई है तो बेचा जाएगा, ठीक है, पहले सूरत में भी तब्दील नहीं किया जाएगा। ठीक है, नाकाबिल इस्तेमाल हो गई, मस्जिद के चंदे से थी, तो अब वो जो एक ऐसी चीज़ जो स्क्रैप बन जाए, जी जी, उसकी जो मालियत होती है उसके एतबार से उसको बेचा जाएगा, ठीक, और पैसे मस्जिद के चंदे में डाल दिए जाएंगे। ठीक, लेकिन जो आपका सवाल था वो ये था कि डिज़ाइन नए से नए आते हैं, जी, तो चीज़ तो काबिल इस्तेमाल है, पंखे भी काबिल इस्तेमाल हैं और जी, दीगर चीज़ें भी काबिल इस्तेमाल हैं, लेकिन तब्दील करना चाहते हैं लोग, जी, तो ये तब्दील करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात बंदा एक तरफ से सोचता है, ठीक है, अभी क्यों इजाज़त नहीं है, सही, हम तो मस्जिद के बेहतरी अंदर का तो चाह रहे हैं, नफीस से नफीस चीज़ आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए, या आपकी वालदा हयात नहीं है, उनके साले सवाब के लिए, ठीक। जिंदों के लिए भी हो सकता है, ठीक है, कोई चीज़ दी, ठीक है, एक बल्ब भी तसव्वुर कर लें, जी, ठीक है, या पंखा दिया, ठीक है, तो आपका ये हक है ना कि वो इस्तेमाल में आता रहे, उससे सवाब मिलता रहे, ठीक है, और वो सवाब मैयत को पहुंचता रहे। ठीक है, जब तक करामद है मैं तो यही चाहूँगा कि इस्तेमाल हो, आपका ये हक है, आपका ये ठीक। राइट है। अब अगले दिन कोई सेठ साहब आ जाए मस्जिद में, ठीक है, यार ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं लेके आऊंगा अपने पैसों से, ठीक है, मैं हूं ना, ठीक, अब तो चेंज कर दो, चेंज कर दो, ठीक है, ये होता है, तो वो चेंज हो गया जनाब, दूसरा आ गया। सही है, तो मस्जिद चलती है शरीयत के जो उसूल ज़वाबित हैं उनके ऊपर, ठीक है, शख्सी राय पर, शख्सी पसंद नापसंद पर नहीं चलती। ठीक है, तो जिसने दिया था उसका हक मुतासिर हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब होता ये है कि जब वो चीज़ लेनी होती है, ऐलानात हो रहे होते हैं, तरगीबें, ये है वो और फलां, और कुछ दिनों के बाद वो चेंज कर दी जाती है, सही, तो अव्वलन तो वो शरन जायज़ नहीं है ठीक है, उसको चेंज करना। ऐसी चेंजिंग, मस्जिद का मामला और अपने घर का मामला दोनों मुख्तलिफ हैं। ठीक, घर में आप आज़ाद होते हैं, अपनी चीज़ों को जो चाहे करें, ठीक, यानी जायज़ जो तरीका है वो अपनाएं, जायज़ दायरे में इस्तेमाल ठीक कर है, सकते हैं, उसको स्क्रैप करके बेच दें आप। सही है, लेकिन जो घर है जी, उसका मामला जुदा है, मस्जिद का मामला जुदा है। ठीक, मस्जिद में जो उसूल में नर्स किए हैं उनको फॉलो किया जाएगा। ठीक, बल्ब की लाइट कम हो गई है ठीक, तो ठीक है, वो आप मेहराब में लगाने के या मस्जिद के बरामदे में मेन लगाने हिस्सों के, में लगाने, आप स्टोर रूम में लगा दें, ठीक, मस्जिद के बाथरूम में लगा दें, ठीक है, तो यूं इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अगली कॉल की तरफ बढ़ेंगे, जी, मोहम्मद शबीर कादरी फारिया शाह से अर्ज कर रहा हूँ। हमारे एक सलाम भाई हैं जिन्होंने साउंड सर्विस बनाया हुआ है, जो कि मुख्तलिफ महफिलों में वो साउंड लेकर जाते हैं। पूछना ये चाहता हूँ कि क्या वो नाच गानों की महफिलों में उसमें वो अपना साउंड जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। देखिए, मसला ये है कि जैसा कि बहुत सारे आलात ऐसे होते हैं कि वो खुद बुरे नहीं होते, ठीक है, उनका इस्तेमाल अच्छा और बुरा रिजल्ट देता है। ठीक है, जैसे टीवी कैमरे हैं, ठीक या एलसीडी हैं, या माइक है, साउंड है, ठीक, इसे उजरत पर दिया जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मालिक खुद लेके चला गया और जो चाहे वो करेगा। सही है, इन चीज़ों के अंदर ऐसा नहीं होता, साउंड सिस्टम ऐसा नहीं होता। ठीक, ये एलसीडी वगैरह इनमें शायद हो जाता हो ऐसा कि उसने दे दी और वो जो चाहे करे, ठीक, लेकिन यहाँ तो ये होता है कि साउंड सिस्टम वाला खुद मौजूद होता है, खुद उसका मौजूद होना वहाँ ज़रूरी होता है। रिदम ऊपर नीचे, ठीक है, जैसा गाना साउंड इफेक्ट्स होते हैं, उसके मुताबिक जो है वो आवाज़, यूँ समझिए कि शादी ब्याह के अंदर जो गाने बजाए जाते हैं उनके अंदर इतनी फहाशी आ चुकी है कि मतलब ना जाने दुनिया कहाँ जा रही है। ठीक, और वैसे भी फाशी ना भी हो तो जो म्यूज़िक है, जी, बिलाशुबा वो म्यूज़िक जो है वो एक नाजायज़ चीज़ है। ठीक है, तो जब कोई म्यूज़िक प्ले करेगा, अब उस प्ले करने की वो उजरत लेगा, जी, तो जिस तरह कोई गवैया है, गुलकार है, अगर वो नात पढ़ेगा तो जायज़ काम है, ठीक है, अगर वो गाना गाएगा तो नाजायज़ काम है, ठीक है, और नाजायज़ काम की उजरत लेगा तो ये तो भी नाजायज़ होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से चूँकि ये खुद वहाँ जाकर सब चीज़ें प्ले कर रहा है, ठीक है, सब चीज़ें जो फराम कर रहा है, तो इसका
जो ये काम है ये जायज़ नहीं है, ठीक। सिर्फ वही जायज़ होगा जहाँ जायज़ शरीयत के दायरे में रहते हुए परफॉर्मेंस पाई जाती है। ठीक जो डिलीवर हो रहा है मीटर जी, वो शरीयत एतबार से अगर दुरुस्त है ठीक है तो जायज़ है, अगर ठीक। शरीयत एतबार से दुरुस्त नहीं है जी, तो जायज़ नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये इनका जाना भी दुरुस्त नहीं होगा, काम भी दुरुस्त नहीं। जी, ठीक है, उजरत भी दुरुस्त नहीं होगी। उजरत भी दुरुस्त नहीं होगी। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम राहिल है, मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि बाज़ कामों में उजरत जो है दी जाती है, तो उससे पहले जो है उजरत तय कर ली जाती है कि फुला काम की ये उजरत होगी, लेकिन बाज़ काम ऐसे होते हैं जिसमें उजरत तय नहीं की जाती और बाद में उजरत दी जाती है या तरकीब बना ली जाती है कि ये ले लीजिए। क्या ऐसा करना दुरुस्त है? ठीक, देखें, ये तरीका कार दुरुस्त नहीं है और इसके बजाय पहले से उजरत तय करना ज़रूरी है। ठीक है इस तरीक़ाकार को इख्तियार अगर ना किया जाए, जो मैंने अर्ज़ किया, जी, पहले से इख्तियार करना ज़रूरी है, तो फिर मसाइल होते हैं, तनाज़ात होते हैं, झगड़े होते हैं। इसलिए शरीयत मुत्तहरा ने पहले से उजरत तय करने का हुक्म दिया है। ठीक है, बाज़ औक़ात सूरत हाल ऐसी होती है कि काम की नोयत फैलती चली जाती है। सही, मिसाल के तौर पर आपने कोई प्लम्बर बुलवाया, ठीक है, ये पानी लीक हो रहा है, कितने पैसे हो गए। और उसने सेवरेज सिस्टम था, देखना शुरू किया, नतीजा ये निकला कि जितनी उजरत और जितना काम था, काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो फ्रीकेन अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं ठीक है, कि जी ये काम अब ज़्यादा बढ़ गया, पहले इस दायरे में काम था, ठीक, अब वो नहीं है, अब ज़्यादा है, सही, तो फिर ये अंडरस्टैंडिंग करें और नई उजरत मुकर्रर की जा सकती है, ठीक, ऐसी गुंजाइश है। लेकिन पहले एक काम की उजरत तय करना ज़रूरी है। अब दुनिया में शायद ही कोई काम हो जिसकी नोयत पहले से मालूम ना हो। ठीक, यानी अव्वलन नोयत मालूम ही होती है, किस किस्म का काम होगा, किस किस्म का नहीं होगा। फिर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर जैसे फैक्ट्री वगैरह के काम होते हैं, जी, कोई पैकिंग कर रहा है तो कोई मेकिंग कर रहा है तो कोई क्या कर रहा है, तो यहाँ पर पीस उजरत मुकर्रर कर ली जाती है ठीक है, कि भाई जितना भी काम करोगे पर पीस के हिसाब से उजरत मिलेगी। ठीक है, तो ये उजरत मुकर्रर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, असल दारोमदार ये है कि काम के मुकाबले में या वक्त के मुकाबले में उजरत तय कर ली जाए। ठीक है, भाई दो तरीके होते हैं, तो काम के मुकाबले में उजरत तय की जाएगी सही या है। वक्त के मुकाबले में की ठीक है। जाएगी। इतने घंटों के इतने देंगे या इतने काम के इतने, इतने? जैसे हम मजदूर रखते हैं ठीक है, तो मजदूर को दिहाड़ी देते हैं, तो सही। उसको दिहाड़ी दी जाती है वक्त पर, ठीक है, कि वो इस वक्त से सब आएगा। तक काम करेगा ठीक। और जो भी मुतदल रफ्तार उसके हिसाब से काम करना है उसको। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोई मिस्त्री या ठेकेदार कहता है कि जी बस हम मुका लेते हैं, ठीक है, सौदा कर लेते हैं लमसम में हम्म, और इतने पैसे हम लेंगे। ठीक है, तो ये अमल पर उजरत है ठीक है, कि अमल उन्होंने देख लिया, अमल ठीक। बयान कर दिया गया सही, और अमल को देख के उन्होंने उजरत मुकर्रर कर ली। ठीक है, अब अगर दोनों सूरतें ना हो तो फिर लड़ाई झगड़े के चांस जो है वो कभी हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब ऐसा महसूस होता है कि जैसे जो बड़ी डील होती होगी, जिसे बाकायदा डील कहा जाए, बड़ी कारोबारी डील है या जो भी लेन देन है, उसमें तो ऐसा समझ में आता है कि शायद उजरत पहले से तय कर ही ली जाती हो। उजरत ना तय करने का मामला ऐसा लगता है छोटे काम जो होते हैं ना, छोटे जिन्हें हम बिल्कुल समझते हैं तो बहुत मामूली से काम है, उनमें ज़्यादा महसूस होता होगा। दूसरी चीज़ ये भी साथ में रखना चाहूँगा कि उजरत तय करने से क्या ये मफहूम है कि अगर मैं किसी से डील कर रहा हूँ तो मैं बोलूँ भाई मैं इसके इतने दूंगा, इस काम के इतने दूंगा या इतने वक्त के इतने दूंगा, और वो बोले ठीक है जी मैंने कबूल किया। या बाज़ औक़ात ये होता है कि काम वाज़ेह होता है और उसकी उजरत भी तयशुदा होती है। इसकी मैं मिसाल यूँ दूँ, जैसे हेयर कटर होते हैं, हमारे हेयर सलून वगैरह होते हैं, तो उन्होंने लिख के लगाए हुए होते हैं, उनके एक फ़िक्स रेट होते हैं आबादी के लिहाज से या उनकी जो भी डायनामिक होती है उसके हिसाब से कि भाई इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने। अब वो तयशुदा हैं उनके, उसमें कोई बारगेनिंग भी नहीं है। अब यहाँ जाके तय करना भी ज़रूरी होगा। यानी बच्चे कितने पैसे हैं, जी, जी, गंजा करवाने के कितने पैसे जी, जी, हैं, और जनाब बाल कटवाने के कितने पैसे जी, जी। हैं। हरमैन तैयबैन में, मक्का शरीफ में ख़ास तौर पर जी, भी ये मामलात होते हैं, जी, और वहाँ तो बड़ी बारगेनिंग करनी पड़ती है। जी, तो वो एज पर कस्टमर जो है वो रेट दे रहे होते हैं। जी, बाज़ औक़ात तो 15 रियाल बोल देंगे, जी, ठीक है, आहिस्ता 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 5 रियाल पे भी आ जाते हैं। जी। हम सब वहाँ ये भी देखा कि लिखे हुए जो है ना वो 15 या 20 या यानी मैक्सिमम रेट लिखा हुआ होता है, लेकिन जो ना फिर वो नीचे भी आता है। एक आध दुकान पे मुझे याद पड़ता है ऐसा। अच्छा, मैंने खैर कहीं लिखा हुआ नहीं देखा, ठीक है, तो वहाँ का मामला जुदा गाना होता है, ठीक क्योंकि वहाँ अलग करवाना ही होता है। ठीक है, ठीक है,
तो वहाँ तो जो भी मस्जिद आराम से निकल रहा है और एहराम में है तो उनके नुमाइंदे आ जाते हैं, ये अलग करवाना है, जी जी हाँ जी कितने पैसे लोगे, ठीक है। कितने लेंगे। आपने जो सवाल किया है कि पहले से तयशुदा होता है, तो अगर किसी ने जाके देख लिया है तो ठीक है, ये भी काफी है, ये भी तयशुदा ये भी तयशुदा। जैसे होटलों के अंदर होता है जी, मेन्यू आता है, जी जी ठीक है, उसके अंदर लिखा होता है कि जनाब आप ये खाएंगे तो इतने का है, ये खाएंगे इतने जी, का, जी, ये खाएंगे इतने का। किसी ने मेन्यू देख लिया ठीक है, तो ये देख लेना काफी है। सही और वो देख के ऑर्डर कर रहा है तो ज़िम्नन रजामंदी पाई जा रही है अफ्रीकन की, सही है। यानी किसी भी सूरत में वाजे हो जाए, वाजे हो जाए और इत्तिफाक हो जाए। ठीक है। अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद अकील शरीफ अत्तारी रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ। अहकाम तजारत का जो सिलसिला है इसमें मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि अगर दो प्रॉपर्टी डीलर हैं जो आपस में मकानों के सौदे करते हैं, तो अब ये दो तरफ से जो सौदे होते हैं तो एक साइड का कमीशन एक प्रॉपर्टी डीलर लेता है और दूसरी साइड का कमीशन दूसरी तरफ का प्रॉपर्टी डीलर लेता है। अब इन दोनों डीलरों के राब्ते करवाने के लिए एक थर्ड पार्टी है, जो दो अफराद जिन्होंने आपस में इन दोनों के राब्ते करवाए हैं। अब इन अफराद का कहना है कि आपकी जब ये अगर प्रॉपर्टी में कोई तरकीब बन जाए तो इसमें से हमें भी कुछ दें। इस बारे में शरीय रहनुमाई फरमाएं, क्या उनके साथ इस किस्म की बारगेनिंग करना दुरुस्त है? ठीक है जी, बड़ा मुनफरिद सवाल है, अच्छा सवाल है जी। देखिए ऐसा होता है जी ब्रोकर के पास कोई और बंदा काम लेकर आता है जी। अब जो ब्रोकरी का जो उसूल हम बारहा बयान कर चुके हैं कि सिर्फ ये ना हो कि किसी ने फ़ोन कर दिया कि मैं फलां बंदे को भेज रहा हूँ, इसको प्लाट चाहिए, आप दिलवा देना, ऐसा नहीं हो, बल्कि ब्रोकर के पीछे जो एजेंट है जी, वो अगरचे के एजेंट का काम ना करता हो, उसकी तरफ से भी कोई न कोई अमली काम पाया जाना चाहिए। ठीक है। मिसाल के तौर पर वो कस्टमर को साथ लेके चला जाए, ठीक है, साथ लेके चला गया, ठीक है, और कहा कि आओ हमारे जानने वाला है, इसके पास चलते हैं, ठीक है, और उससे तय कर लिया कि अगर मैं गाहक लेकर आऊँगा तो मुझे इतना फीसद आपको कमीशन देना होगा। ठीक है। तो साथ लेकर जाने में एक अमली जो है वो एक्टिविटी पाई गई, ठीक है, और ब्रोकरों के यहाँ ये उर्फ भी है, ठीक कि जो उन्हें सौदा ला के देते हैं जी, ब्रोकर उन नीचे वालों को भी देते हैं, ये इनका उर्फ भी है। ठीक है। सिर्फ फ़ोन से काम ना चलाया जाए, अमली एक्टिविटी पाई गई इसके अंदर, या दौड़ धूप पाई गई, या कोई ऐसा मामला पाया गया, पैसा खर्च करना वगैरह, या कुछ काम इसके जिम्मे आ गए, डॉक्यूमेंट वगैरह इस ताल्लुक से, तो बिलाशुबा ये आदमी भी तयशुदा उजरत का मुस्तहिक होगा, इसकी गुंजाइश मौजूद है। आम तौर पर यह होता है कि ब्रोकरों के पीछे जो लोग होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो उनका ये प्रोफेशन नहीं होगा, ठीक है, अगर प्रोफेशन है तो वो बाकायदा इसको पार्टनरशिप कहते हैं ब्रोकर, ठीक है, कि भाई दो ब्रोकरों ने मिल के जो है वो एक काम अंजाम दिया है, और ये ताल्लुकात आमा जो है और वसअत जितनी आ चुकी है आबादी के अंदर, तो उसमें फिर ये कनेक्शंस काम आ रहे होते हैं, ठीक है, इन कनेक्शंस के जरिए जो है वो डील मुकम्मल हो रही होती है। ठीक है, तो जी इसकी इजाज़त है, सूरतें हैं। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं जी। मुफ्ती साहब का सवाल ये है कि कंपनी, हम दुकानदार हैं, कंपनी हमें माल देती है कि अगर आप ये माल ले लो, अगर आप 40 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करोगे तो हम आपको जायद पैसे नहीं लगाएंगे, अगर 40 दिन के बाद पैसे दोगे तो हम आपको जायद पैसे लगाएंगे। क्या ऐसा करना ठीक है? ये सूद वगैरह तो नहीं आता? ठीक है जी। मुझसे इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, इन्होंने कहा कि 40 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो इजाफी पैसे नहीं देना पड़ेंगे, वरना इजाफी पैसे देना पड़ेंगे। अच्छा, इसके अपोजिट सूरत भी पाई जाती है कि अगर 40 दिन के अंदर आपने पेमेंट करी तो आपको हम इतना डिस्काउंट दे देंगे, वरना कीमत ये है। जो साहिल ने पूछा है फिलहाल तो मैं उसका जवाब दे दूं। ठीक है। देखिए, जो आपने सवाल पूछा है ये बिलाशुबा सूदी मामला है। हमारे यहाँ बहुत सारी मार्केटों में, बाबुल मदीना में भी ऐसा होता है, ख़ास तौर पर मेरे पड़ोस में तो यान मार्केट है। ठीक है। तो यान मार्केट वाले क्या करते हैं जी, उधार पे माल चलता है वहाँ पे जी, ठीक है, 35 दिन की उधार पे इतना रेट है जी, 30 दिन के उधार पे माल बेच दिया, अब पार्टी ने पैसे नहीं दिए, टाइम ऊपर कर दिया, तो उनके यहाँ 45 दिन का भी रेट होता है। सही है। अब उस पार्टी को 45 दिन का रेट लगा देते हैं, खुद ब खुद ये लग जाएगा, लगा देते हैं। ठीक है। तो जो सौदे की कीमत होती है वो तो वो होती है जो सौदे के वक्त तय होती है। सही, वो माल की कीमत बनी ना। ठीक है।
माल की कीमत बनी जो सौदे के वक्त तय हुई, ठीक है, वही कीमत रहेगी। अब इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। सही है ये बात अंडरस्टूड है। सौदा खत्म जरूर हो सकता है, जी, ये माल वापस कर दे और कीमत का हिसाब खत्म हो जाए, ठीक है, इसकी गुंजाइश है अगर फरीकैन राजी हैं तो। सही, लेकिन अगर मामला ऐसा नहीं है और जनाब ऑटोमेटिकली ये इन्होंने फार्मूला लगा दिया, तो अब क्या हुआ? जो इन्होंने इजाफी पैसे लिए हैं वो पैसे लिए टाइम और पीरियड के, सही, माल के पैसे नहीं हो सकते। उसके वो बदले कोई चीज नहीं है, माल के पैसे तो वही थे जो सौदे वक्त तय हुए थे। ठीक है, जो इजाफी पैसे लेंगे ये टाइम और पीरियड के लेंगे। सही है, टाइम और पीरियड के पैसे लेना है तो सूद है, लो बिल्कुल, तो सूदी मामला है। ठीक है। अब इसका एक हल हो सकता है, ये जो एक लॉस वो है कि अपना कवर करने की इसका एक हल हो सकता है जी, लेकिन ये हल हर जगह काम नहीं आएगा। सही है, बेमिसाल के तौर पर इनको पता है पार्टी जो है वो गड़बड़ करती है, ठीक है, ठीक है, आगे पीछे कर देती है, आगे पीछे कर देती है। ठीक। पार्टी को कहा जाए कि देखें हमारे पास ये माल है और हम आपको ये 55,000 का बेचेंगे। सही है, ये आमतौर पर बेचते हैं 50,000 का। सही है, उससे कहें ये माल 55,000 का बेचेंगे, ठीक है, अगर आपने वक्त पर पेमेंट कर दी ठीक है, तो हो सकता है हम आपको डिस्काउंट कर दें। सही है, वक्त से पहले नहीं, वक्त से पहले नहीं, ठीक है, वक्त पर, पूरा वक्त जब हुआ उस वक्त पर की है तो गुंजाइश है। ठीक है, वक्त से पहले वाला जो डिस्काउंट है वो मामला जुदा है, ठीक है, और मैं किसी और सिलसिले में तफसील से बयान करूंगा अल्लाह ने चाहा तो। पूरा वक्त हो गया, ठीक है, 30 जैसे दिन का था, 30 दिन हो गए। बच्चों की फीस है स्कूल की, ठीक है, पेनल्टी लगाता है कोई। जी, अब फीस है मिसाल के तौर पर 2500 रुपये सही है, और इनको 200 रुपये पेनल्टी लगानी होती है, ठीक है, तो 2500 के बजाय ये स्कूल वाला 2700 रुपये फीस रख ले। ठीक है, फिर 2700 रुपये उजरत है हमारी जो हम सर्विसेज अंजाम देते हैं, और हमारी तरफ से एक ऑफ़र है जिन बच्चों की कारकर्दगी अच्छी आएगी हम उनको डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, तो 200 रुपये जो है ना वो अगर कारकर्दगी बेहतर है 200 रुपये डिस्काउंट दे दे। सही, ये पहलू तो मौजूद है, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जो इनफरादी तौर पर दोनों समझदार हों, दोनों समझते हों क्या हो रहा है ऊंच नीच के बगैर इस पे अमल कर सके तो हो सकता है, वरना आम हालात में तो ये होता है कारोबार के अंदर इतनी तेज़ी है, बंदा एक दफ़ा मसला सीख लेता है फिर बाद में पता नहीं होता ये मैंने सीखा किस मकसद के लिए था, ठीक। करना क्या था क्या नहीं करना था, बस वो चले जा रहा होता उसकी रूह क्या थी ये भूल जाते हैं। भूल जाता है। ठीक है जी, जितना मुफ्ती साहब ने बताया इतनी रहनुमाई पे अगर अमल मुमकिन है तो कर ले, नहीं तो मजीद रहनुमाई के लिए दारुल इफ्ता अब इंतज़ार करें, अगर देखें जो जिसका माल है जी, उसके साथ ऐसा हादसा पेश आता है तो उस पर लाजिम है को इंतज़ार करे, पैसे ना बढ़ाए। ठीक। पैसे इजाफी लेगा तो सूद होगा, ठीक है। इंतज़ार करे, उसको अखलाकी तौर पर बाउंड करे, थोड़ा बहुत फ़ोन करे, इल्तिजा करे, रिक्वेस्ट करे। ठीक। हर बात है कारोबारी ज़िंदगी के अंदर, कारोबारी दुनिया के अंदर मिठास, प्यार, मोहब्बत, एतमाद ये बहुत अहमियत रखती हैं। ठीक, तो उम्मीद है बेहतरी आएगी। ठीक है। और मुफ्ती साहब जो लेते हैं उन्हें भी बहरहाल कोशिश तो करनी चाहिए कि वक्त पे ही दें। बिलाशुबा उनके ऊपर मजहबी फरीजा भी है ये। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मैं तारिक अतारी गुनिया से बात कर रहा हूँ। मेरा इकामे तजारत में मुफ्ती साहब से सवाल है कि मस्जिद के अंदर जो बल्ब लगे थे उनकी रोशनी कम थी लेकिन वो थे ठीक, तो उनकी रोशनी बढ़ाने के लिए मैंने जो है दो नए बल्ब लगाए जिनकी रोशनी कम है और उनकी जो वाट है जैसे वाट भी कम है ताकि बिजली का बिल आएगा वो भी इससे कम होगा। तो मेरा ऐसा करना कैसा हुआ? आपका ये करना तो ठीक है, लेकिन मसला ये कि जो बल्ब आपने निकाले हैं वो कहाँ इस्तेमाल करेंगे? असल सवाल तो ये है ना। ठीक है, वो असल सवाल है जो आपको करना चाहिए। हम उसका जवाब दे चुके हैं, शायद पहला सवाल हुआ उसमें ही आपने किया है। तो उनको बेचे नहीं, मस्जिद के ही किसी इहाते के अंदर जो मसाले मस्जिद हैं या मस्जिद हैं उन चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया जाए तो ठीक है, इस तरह दुरुस्त होगा। तो मैं जो समझ सकूँ वो अर्ज करूँ कि बल्ब बिलखुसूस में अर्ज करूँ, बल्ब में कुछ जो है ना तब्दीलियाँ आई हैं। अगर मैं पाकिस्तान के सिनेरियो में अर्ज करूँ वो एलईडी आ गई है, ये चेंजिंग आई है, तो अब जो है ना लोग वो चेंज करना चाहते हैं कि इसका बिल कम आएगा, ये यूँ सस्ते पड़ते हैं, यूँ सस्ते पड़ते हैं, इसमें ये बचत है, तो शायद ये वो सूरत है। देखिए इतना ज़रूर है कि पीले बल्ब जो है ना वो हमारे मुल्क में अब नहीं पाए जाते। ठीक है, शायद ही कहीं किसी गांव देहात में कोई पुराना स्टॉक माल रह गया हो जी, वो मौजूद हो। मैं पढ़ रहा था जो मिनी बजट आया अखबार में इसकी तफसील आई हुई थी, तो बल्ब लाने पे पाबंदी लगी हुई थी।
ठीक है, उस लिस्ट में शामिल था बल्ब, येलो बल्ब जो होते थे। हाँ येलो बल्ब, कि ये पाकिस्तान में बल्ब नहीं आएगा। ठीक है, तो बल्ब तो शायद ही पाए जाते हो। ठीक है तो अब वो जो चीज़ ट्यूबलाइट है, अब ट्यूबलाइट पहले कारामद चीज़ है, जी, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसकी अपनी लाइट है, एलईडी की अपनी लाइट है, ठीक है, दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन जो मस्जिद का माल है वो इस्तेमाल में आना चाहिए। वो सब मैंने जो सवाल किया था वो मैं यूं भी अर्ज करना चाह रहा था कि जैसे अब बल्ब चेंज हुआ है, आज चेंज हुआ है, तो हम चाहते हैं कि बिलफर्ज मेरे पास पैसे हैं, कमेटी का मैं सदर हूं या जो भी हूं, मेरे पास पैसे हैं और मुझे पता है ये 100 बल्ब मुझे चेंज करने 10,000 रुपए के चेंज होंगे बिलफर्ज, और मेरे पास 10,000 रुपये मौजूद है, तो मैं आज ही चेंज कर दूं। हालांकि बल्ब की तो बहरहाल एक उम्र है और वो 6 महीने 8 महीने 1 साल 1.5 साल में उसे ख़त्म हो जाना है। जी। तो अगर यही पॉलिसी अपना लें कि जैसे जैसे वो फ्यूज़ होता रहे, ख़त्म होता रहे, तो नए बल्ब लगाते रहे, मुमकिन है सर। ठीक है। अगली कॉल दीजिए। सरदाराबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक सूट फर्ज करो 500 में मिलता है फैसलाबाद से, वो 1000 में बेच सकते हैं? ठीक है जी, जनाब 2000 में बेच सकते हैं, 1000 तो बहुत कम रकम है। ठीक है। असल मामला ये है कि हर चीज़ का जो मालिक है जी, वो खुद मुख्तार है। ठीक है, वो अपनी सौदे को जिस मर्जी कीमत पर बेच सकता है, जबकि वो माल हो, शरई एतबार से उसका ख़रीदना बेचना जायज़ हो, धोखा ना दे, झूठ ना बोले, उसका गलत वस्फ बयान ना करे, वो बात जो उसमें ना पाई जाती हो वो उसकी तरफ मंसूब ना करे, कीमत ज़्यादा रख के बेचना जायज़ है। ये अलग बात है कि अगर आप थोड़ा सस्ता बेचेंगे, आपका सौदा ज़्यादा बिकेगा, ग्राहक ज़्यादा बनेंगे, आपके ख़रीदार ज़्यादा बनेंगे। अगर आप होलसेल का काम करते हैं तो वो रिटेलर आपके पास बार बार आएंगे, माशरे को भी फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा। बेहतर ये कि सस्ता बेचा जाए। ठीक है, मतलब सस्ता बेचने में इन्हें भी फ़ायदा हो, इन्हें भी फ़ायदा है बिलाशुबा। ठीक है जी। अगली कॉल दीजिए। एक काम आ ਉਹਦੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ? एक बंदा सामने हैगा, ठीक है, ठीक है, कोई बीच का मिडिल मैन नहीं है, ठीक है, मिडिल मैन कोई भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक ठेकेदार है। सही है जिस तरह हमने अभी माल का बताया ना जी, कि एक आदमी का माल है और वो माल जो है वो जितने का चाहे बेचे, जितने का चाहे बेच सकता है। सही। तो इसी तरीके से जो मजदूर है जी, या जो ठेकेदार है, ठीक है, ठेकेदार भी तो बारगेनिंग का इख्तियार रखता है ना। ठीक है, वो ठेकेदार जो है वो ये कहे कि मैं ये 15 लाख का बनाऊंगा, सही, और सामने वाला मान जाए, ठीक है, ठेकेदार तो बड़ा खुश होगा। सही, सामने वाला रिक्वेस्ट करे और 2-4 लोगों से मशवरा करे, 2-4 लोगों से पूछे, पता चले कि नहीं ये काम तो 12 लाख तक में आराम से हो जाएगा, ठीक है, तो वो उसको 12 लाख की ऑफर कर दे। ठीक है, तो इन चीज़ों में बारगेनिंग की गुंजाइश रहती है। सही, ये नहीं कहेंगे कि इस ठेकेदार ने कोई खयानत की है, बददियानती की है। हाँ, अगर वो ठेकेदार कहता है कि ये चीज़ कोई 12 लाख 15 लाख की बना ही नहीं सकता, ठीक है, और ये तो मैं हूँ जो बना के दे रहा हूँ, ठीक है, ये गलत बात होगी। ठीक है, ये उसने झूठ बोला और एक धोखे का पहलू बहरहाल इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये था तस्वीर का एक रुख। ठीक है, दूसरा रुख ये है कि मस्जिद का काम है, ठीक है। मुझसे तस्वीर का जो रुख आपने बयान किया, इसकी इजाज़त है? इसकी इजाज़त है, ठीक है, ये होता है। ठीक में जो बड़े काम होते हैं ठेकेदारी के, जी, हर ठेकेदार के अलग रेट होते हैं, सही, ठीक है, हर एक अलग कीमत दे रहा होता है, स्क्वायर फीट के हिसाब से बाज़ औक़ात कीमतें होती हैं, सही है, वो बहुत मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे रेट कमोबेश होते रहते हैं। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि कोई आदमी आपसे धोखा कर जाए, ठीक, और वो कहे कि मैं सस्ता वो लेकर आता हूँ और यूं है वो है फलां है, वो कोई चीटिंग कर जाए, वो मेरी जुदा पहचान है, मेरा एतमाद है, वो जुदा खाना चीज़ है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर मस्जिद का मामला है, ठीक है, तो मस्जिद के मामले में तो ला मुहाला आपको मार्केट रेट को फॉलो करना ज़रूरी होगा कि मार्केट रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, खूब जो मस्जिद इंतज़ामिया है, कमेटी है, उसके ज़िम्मे ये लाजिम है कि वो पूरी तफ्तीश करे। और मस्जिद के ताल्लुक से 2 तरह के लोग होते हैं। काफ़ी सालों की बात है जी, दारुल इफ्ता में कुछ किताबत करवानी थी, ठीक है, तो एक पेंटर आया ना, ठीक है, सबने कहा पैसे तो आप ज़्यादा बता रहे हो। मौलाना साहब आपने कौन सा अपने जेब से देने हैं, मस्जिद का तो माल जाएगा। ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये मेरे लिए जवाब गैर मुतवक्के था।
ورنہ اکثر لوگ جو ہیں وہ مسجد کا کام، مدرسے کا کام بہت خوش ہو کے کرتے ہیں اور رعایتی جو ہے وہ معاوضے پر کرتے ہیں. تو ممکن ہے بعض لوگ ایسے ہوں بولیں گے جی ان کے پاس تو پیسے آ جائیں گے جتنے مرضی مانگ لو. تو اگر مسجد کمیٹی یا انتظامیہ اس کے اندر کوتاہی برتے گی اور مارکیٹ ریٹ سے زیادہ پر سودا کرے گی، اس کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک. ورنہ تو زیادہ تر لوگ ایسے ہی ملیں گے کہ جو گنجائش کے ساتھ اور رعایت کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ مسجد مدرسے کا کام کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، مطلب یہ تو جواب ہو گیا. جی. ایک چیز یہ کہ جیسے آپ نے ریٹ کا بتایا، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی کام ہے لیکن کرنے والوں کا مزاج اور انداز مختلف ہے. ایک کرتا ہے بڑے پیوریفائی طریقے سے کرتا ہے، بڑے بیوٹیفائی طریقے سے کرتا ہے، تو اس کے پیسے اسی کام کے، یعنی جو بظاہر دیکھنے میں وہی کام ہے، وہی 4 دیواریں بنائی ہیں اس نے، وہی 2 کھڑکیاں نکلی ہیں، وہی ایک دروازہ ہے، وہی چھت ڈلی ہے، تو وہی کام ایک شخص کر رہا ہے، بالفرض ہم لے لیتے ہیں 1 لاکھ روپے کا، اور دوسرا شخص کر رہا ہے 1,20,000 روپے کا. کام کروانے والا جو ہے اس کو پتا ہے کہ یہ 1 لاکھ روپے میں جو کر رہا ہے اس کے کام کی نوعیت کیا ہوگی، اور جو یہ 1,20,000 روپے لے رہا ہے تو اس کے کام کی نوعیت کیا ہوگی. کچھ نک سک ہوتی ہے، کچھ پیمائش ہوتی ہے. دیکھیں جو کام والے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے کام والے عام طور پر چلتے پھرتے یا انجانے پن میں ان سے سودے نہیں کیے جاتے. جی. بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے کوئی کام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو زیادہ تر ان کے پہلے کام کو دیکھ کے دوسرے کام کیے جاتے ہیں. جی. مجھے یاد ہے کہ ہمارے محلے میں مسجد تعمیر ہوئی. جی. اب اس کی جو پہلی چھت تھی وہ ایک ٹھیکیدار نے ڈالی. ٹھیک ہے. دوسری چھت دوسرے ٹھیکیدار نے ڈالی. ٹھیک ہے. پہلی چھت اتنی برے انداز کی ڈالی ہوئی تھی کہ اس کا پلستر کرواتے ہوئے مزدوروں کی جان نکل گئی. بہت ٹیڑھی میڑھی باہر اس کے اندر، جبکہ جو دوسری چھت ڈلی ہوئی تھی وہ بہت صاف ستھری ڈلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو یوں کاریگر کا فرق ہوتا ہے. جی جی بالکل. تو اس کے اعتبار سے اگر ریٹ کم زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کی بھی گنجائش ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس معاملے میں دوسرے لوگوں کو تو زیادہ کلام نہیں کرنا چاہیے نا کہ تو سستا کام ہو جاتا، مہنگا ہو جاتا، جیسے باہر کے افراد بعض اوقات جو ہے اس طرح کی قیاس آرائیاں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں قیاس آرائیوں کی گنجائش ہے تو کی جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ وقف کا معاملہ ہے. وقف کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن بعض لوگوں کو تجربہ نہیں ہوتا یا بس ان کو اپنے رائے دینی ہوتی ہے. مسجد کے معاملات میں تو ہر آدمی آزاد ہے نا. مسجد ایک اوپن پلیٹ فارم ہے. ٹھیک ہے. مسجد کی ٹوٹی ہوئی تبدیل ہوگی تو 10 رائے آئیں گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ سوچنا چاہیے رائے دیتے ہوئے جی کہ ہم بلا وجہ ٹوک مار رہے ہیں یا رائے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات ٹوک مارنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پر آگے اپنی جو ہے نا وہ انٹری دینی ہے. ٹھیک ہے. اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. نہ تجربہ ہوتا ہے، نہ اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. سوال ہے حکام تجارت سلسلے میں کہ کچھ کمپیوٹر کے اوپر ایسے سافٹ ویئر ہم استعمال کرتے ہیں جنہیں ہم کریک کر کے یوز کرتے ہیں، یعنی کہ وہ خریدے جاتے ہیں لیکن ہم خریدے بغیر ہی انہیں استعمال کرتے ہیں، جو کہ غیر قانونی ہوتا ہے، اور ہوتے وہ بہت مہنگے ہیں، ہر بندہ اسے خرید بھی نہیں سکتا. اور مثلا آپریٹنگ سسٹم ہے یا پھر کوئی ٹائپنگ کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جس میں ہم ٹائپنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ لوگ ان سافٹ ویئرس پہ نا کام کر کے نہ تو بیچتے ہیں، مثلا فری لانسنگ کرتے ہیں، تو اب کوئی رپورٹ لکھنی ہے تو وہ اس پہ لکھیں گے، اب اس رپورٹ کے پیسے لے رہے ہیں لیکن وہ لکھی اس سافٹ ویئر پہ ہے. تو یہ اس کی اجرت کا کیا حکم ہوگا؟ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں اجرت تو حلال ہی رہے گی. ٹھیک ہے کہ اگرچہ کہ کوئی سافٹ ویئر آپ نے استعمال کیا ہے لیکن اگر آپ نے جائز کام کیا ہے تو وہ کام بہرحال جائز رہے گا. اب رہ گیا سافٹ ویئر کا معاملہ. جی ٹھیک ہے. تو اس کے اندر دیکھیں 2 طرح کے سافٹ ویئرز آتے ہیں. ٹھیک. کچھ ایسی کمپنیز ہوتی ہیں کہ جن کے تمام ملکوں کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں. ٹھیک. کچھ ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جن کے ایک ملک کے ساتھ معاہدہ ہوگا، دوسرے ملک کے ساتھ کوئی معاہدے نہیں ہوں گے. ٹھیک. ہر ملک کا جدا گانا معاملہ ہے. جیسے کتاب کا معاملہ ہے. ٹھیک. جتنی کتابیں دوسرے مکتبوں کی عربی کتابیں پاکستان میں چھپتی ہیں دنیا کسی ملک میں نہیں چھپ سکتی. ٹھیک ہے. جیسے عرب کنٹریز ہیں، جی خلیج ممالک ہیں، جی ان ممالک کے اندر آپس میں کوآرڈینیشن ہے. ٹھیک ہے. اور عربی کتابیں زیادہ چھپنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ باہر کیوں چھپتی ہیں. جی ایک تو اس کے جو ریڈر ہیں وہ باہر زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں پڑھنے والے وہاں پہ زیادہ، وہاں کا عالم بھی پڑھتا ہے تو عوام بھی پڑھتی ہے. ٹھیک ہے. عربی ہے. عربی پڑھتی. ٹھیک ہے.
دوسری وجہ یہ ہوتی ہے ان کے لیے جو مارکیٹ ہے وہ بہت بڑی ہے. ٹھیک. تمام ممالک ان کے لیے مارکیٹ ہیں. ٹھیک. اب کسی بھی ملک اگر کوئی کتاب مصر میں چھپی ہے تو وہ کویت میں نہیں چھپ سکتی. صحیح. وہ امارات میں نہیں چھپ سکتی, وہ عمان میں نہیں چھپ سکتی, کیونکہ ان ملکوں کے معاہدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, قانونی ایک باؤنڈنگ ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی قانونی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے لوگ پاکستان میں بھی وہ کتاب چھاپ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. یہ الگ بات ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے وہ ان کی دل آزاری بہرحال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہر سافٹ ویئر ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے لانچ کر دیا اور ہر ملک کے ساتھ اس نے معاہدہ کر لیا. کاپی رائٹ کا معاملہ قانونی آئے گا نا جی, کہ اگر تو ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کمپنی کوئی معاہدہ نہیں کاپی رائٹ کا جی, تو جو معاملہ جو رکاوٹ آنی تھی وہ آنی تھی غیر قانونی ہونا. ٹھیک. تو غیر قانونی ہونے کا پہلے تو نہیں پایا گیا. ٹھیک. جب ہماری گورنمنٹ کے ساتھ اس کا کاپی رائٹ کا معاہدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس کے ساتھ معاہدہ ہے پھر وہاں دیکھی جائے گی کیا تفصیل ہے, کیا معاہدہ ہے. اور اداروں میں تو فالو کیا جاتا ہے, جو بڑے ادارے ہوتے ہیں وہ خرید کر ہی یوز کرتے ہیں. ٹھیک. اور اس لیے بھی خرید کر یوز کرتے ہیں کہ ان کے کام زیادہ اہم ہوتے ہیں. ٹھیک. ان کاموں کے مقابلے میں کوئی قیمتیں نہیں ہوتی ان سافٹ ویئرس کی. ٹھیک. تو وہ اپنے کاموں کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے خرید کر یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آخری کال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پنجاب پاکستان خوشحال بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کپڑے کی دکان بنائی ہوئی ہے اور میں جب کپڑا پیسز سے لے آتا ہوں تو ٹکا پھٹا نکل جاتا ہے. ٹکا پھٹا جو نکلتا ہے وہ میں آگے ان کو بتا کر سیل کرنا ضروری ہے یا ویسے ہی سیل کر دوں؟ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ یہ آپ سے معلومات لینی چاہیے. ٹھیک ہے جی. مسئلہ تو بہت بڑا ہے جی, اس لیے بہت بڑا ہے کہ وہ بیچارہ بڑی خوشی سے لے کر گیا تھا سوٹ بنانے کے لیے, پتہ چلا کہ نہ دامن بن سکتا ہے نہ پاجامہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. درزی نے بھی واپس کر دیا. ٹھیک. تو ویسے بھی مارکیٹ میں پھٹے ہوئے کپڑے کی قیمت اور ہوتی ہے اور جو صحیح ہوتا ہے اس کی قیمت اور ہوتی ہے. تو کپڑے کا پھٹا ہونا عیب ہے اور دکاندار پر عیب ظاہر کرنا شرعاً واجب ہے, سوائے یہ کہ دکاندار یہ کہے کہ بھائی جیسا بھی ہے دیکھ لو, اس کی ہر عیب سے میں بری ہوں. ٹھیک ہے, اپنی سوچ سمجھ کے مطابق اس کو لے کر جائیے گا تو جائز ہوگا, ورنہ عیب بتانا آپ پر واجب ہے اور کسٹمر واپس کرنے آتا ہے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب ہوا اور ہمارے سلسلے کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے. احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے.